बिल्कुल भागीरथ इससे पहले लीग स्टेज में बहुत अच्छी बैटिंग उन्होंने किया था, जिस तरह से रन बनाए थे और टीम को बहुत अच्छा स्टार्ट दिया हर मैच में। और आज फिर से चाहेंगे एक बार कि बेहतर शुरुआत दे 10 ओवर में, खासतौर पे पावर प्ले के ओवरों में। একদমই প্রথম তিনটে ওভার পাওয়ার প্লে, সেই জায়গায় ভাগীরথ এবং ফাইজান তারা একটা ভালো স্টার্ট দিতে চাইবে। আপনারা আমাদের সঙ্গে জুড়ে যান SG18 স্পোর্টস ইউটিউব লাইভ স্ট্রিমিং এ। ফ্লাই টুয়ার্ডস ইউর ড্রিম, ব্র্যান্ড ফর অল স্পোর্টস। 10th নভেম্বর জার্নি স্টার্ট হয়েছিল। ফাইনাল ডে উত্তেজনা আবেগ প্রত্যেকের জন্য নিয়ে আসবে প্রত্যেকটা ম্যাচ, এটাই আশা করব কমেন্ট্রি বক্স থেকে। बिल्कुल आसनसोल ब्रदरहुड प्रीमियर लीग वी प्ले फुल लव, और दोनों टीम आपके सामने हनी 11 एक तरफ और एक तरफ टाइगर क्लब। सेमीफाइनल का ये मुकाबला तैयार, दोनों टीम लोको ग्राउंड आसनसोल से लाइव एक्सक्लूसिव SG18 स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल पे। ছবি কথা বলছে, আন্তর্জাতিক মানের ফুটেজ বারবার আপনাদের সামনে আমাদের টিম তারা পৌঁছে দিচ্ছে। সমস্ত ক্যামেরা পার্সন, এডিটর, সবার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ। একটা লং জার্নি আপাপুল, সম্ভবত খুব যদি ভুল না বলি বাংলার প্রিমিয়ার লিগের ইতিহাসে সবথেকে বেশি দিনের টুর্নামেন্ট এটা, এবং মহৎ উদ্দেশ্য, যেটা সবথেকে বড় উদ্দেশ্য আসানসোল সাব ডিভিশনের প্লেয়াররাই কেবল এই টুর্নামেন্টে পার্টিসিপেট করেছে। প্রচুর প্লেয়ার্স, প্রচুর তরুণ তুর্কি তারকাদের সঙ্গে এক্সপিরিয়েন্সড প্রচুর খেলোয়াড়। রাকেশ্বর কথা তুমি বলো, লালুর কথা তুমি বলো, ইমরানের কথা তুমি বলো, নিখিল সিং এর কথা তুমি বলো, স্পন্দন প্যাটেলের কথা তুমি বলো, প্রচুর প্রচুর স্টার খেলোয়াড়দের পাশাপাশি প্রচুর নতুন ইয়াং আপকামিং ট্যালেন্টস, তারা কোথাও নিজেদের প্রতিভাটা বিকাশের সুযোগ পাচ্ছে। এটাই উদ্দেশ্য এই টুর্নামেন্টের। बिल्कुल समरेशदा, आप भी इस फील्ड में काफी सालों से, लेकिन आपको बता दूं मेदिनीपुर जिस तरह से क्रिकेट में हम लोग मक्का कहते हैं, उसके बाद अगर आप बी ऑनेस्ट देखिए पश्चिम बर्धमान काफी आगे आते हैं। और इस पश्चिम बर्धमान में आसनसोल सब डिवीजन एक ऐसा जगह जहां पे कई लड़के हैं जिसको आप ओपन टूल में देखते हैं, कई चेहरे जिनका आपने नाम लिया, उसके बाद भी यंग लड़के अगर आप देखिए इरफान जो आपने कहा रिसेंटली उनको देखा बेस्ट बैटर का अवार्ड जीते, उसके साथ साथ सलमान, कई चेहरे हैं जिन्हें हम लोग देख रहे हैं अपकमिंग स्टार के रूप में आने वाले टेनिस क्रिकेट में। একদমই ইরফানের কথা তুমি বলছিলে, ভবিষ্যৎ রয়েছে এই ছেলেটির। অনেক প্রতিষ্ঠিত খেলোয়াড়, নতুন খেলোয়াড়, সবকিছু মিলিয়ে একটা মেলবন্ধন আমরা বলছি। এটা ভালোবাসার মেলবন্ধন, ভালোবাসা ছড়িয়ে দেওয়ার মেলবন্ধন। যে ভালোবাসা তুমি যত বেশি ছড়িয়ে দেবে আপাপুল, তত বেশি করে তুমি পাবে। फर्स्ट बॉल निखिल सिंह आ रहे बॉलिंग के लिए, पहला ओवर लेके स्ट्राइक पे फैजान, नॉन सेकंड पे भागीरथ। फर्स्ट ओवर फर्स्ट बॉल निखिल सिंह, मध्यम गति के गेंदबाज, पहला ओवर लेके आ रहे हैं सामने फैजान। फाइनल डे फर्स्ट बॉल तैयार दोनों टीम। पहली बॉल ड्राइव करने का प्रयास, बॉल पॉइंट पे, रन मिलेगा नहीं, शुरुआत डॉट बॉल से। একদমই প্রথম বল পয়েন্ট অঞ্চলের দিকে খেলোয়াড় ছিলেন, স্কোয়ার অফ দ্য উইকেট খেলার চেষ্টা ছিল, রান আসবে না। ফাইজান প্রথম বলটা তিনি ফেস করলেন। নিখিল সিং টুর্নামেন্টে এখনো পর্যন্ত সফলতম বোলার, ভালো বল করে চলেছেন। এবার কভার পয়েন্ট অঞ্চলের দিকে ড্রাইভ করেছেন, দ্রুততার সঙ্গে বল যাচ্ছে সীমানার দিকে, শেষ পর্যন্ত শেষ রক্ষা মোটেও হয়নি। বাউন্ডারি সংকেত, অর্থাৎ আজকের দিনের প্রথম বাউন্ডারি এবং প্রথম সেমিফাইনালের প্রথম বাউন্ডারি, সেটা ফাইজানের ব্যাট থেকে এলো। देखिए कितनी आसानी से शॉट खेले थे, ज्यादा ताकत दिए नहीं, बस प्लेस किया और बॉल निकल गई चौके के लिए। निखिल बॉलिंग कर रहे, पहला ओवर, खूबसूरत स्टार्ट फैजान के लिए। সকাল থেকে গড়িয়ে রৌদ্রের কিরণটা আপাপুল মাঠে এসছে। ডিউ কাল এতটা ছিল না মাঠে, যে কারণে ফ্যাক্টর হবে বলে মনে হচ্ছে না টস। কোথাও প্রত্যেকে নিজেদের এবিলিটি, নিজেদের প্রদর্শন শক্তি, সেটা করলে বেটার হবে দলের জন্য। এর মধ্যে আরো একবার পয়েন্ট অঞ্চলের দিকে, এখানেও রান আসবে না। लगातार 3 बॉल अगर देखिए आप, निखिल ट्राई कर रहे हैं कि बल्लेबाज को ललचाए, वो आगे निकलकर छक्का लगा, लेकिन टाइम लेकर खेल रहे, कोई जल्दबाजी नहीं। 3 बॉल अभी तक 4 रन, बेहतरीन शुरुआत निखिल सिंह के लिए, क्योंकि लेदर बॉल काफी खेलते हैं और टेनिस बॉल में आते ही एडजस्ट करना ये बहुत बड़ी बात है। कैच का कॉल है, कैच का कॉल लीजिए, फंस गए जाल में। पहली विकेट अपने नाम करते हो निखिल सिंह ने दिलाया सफलता, आउट हुए फैजान, बिग मैन डिपार्ट्स। প্রথম ওভারেই বল করতে এসে নিখিল সিং তিনি বিপক্ষ শিবিরে যে ধাক্কাটা দিলেন, সেটা থেকে অন্তত হানি 11 কত দ্রুত ফেরত আসতে পারবে প্রশ্ন চিহ্ন হয়ে গেল। ফ্যাজান তার ব্যাট থেকে একটু আগেই কাভার অঞ্চল দিয়ে একটা নয়নাভিরাম বাউন্ডারি আমরা দেখছি, এবং এই উইকেটটা আমরা দেখে নেব কিভাবে স্কোয়ার লেগে অনবদ্য একটা ক্যাচ, দুর্দান্ত একটা ক্যাচ।
ভালো ক্যাচ, নাসিদ ছিলেন, শরীরটা ছুড়ে দিলেন এবং শুরুর দিকে এই এফোর্টগুলো, এই ক্যাচগুলো নিখিল সিং যে কোনো বোলারকেই একটু বাড়তি অক্সিজেন দেবে, উদ্যম পাবেন বল করতে গিয়ে। बिल्कुल, और जहां आपको पहले ओवर में विकेट मिल जाए, और क्या चाहिए आपको एज ए कैप्टन, टीम को अच्छा शुरुआत दी निखिल सिंह। बैटिंग लिया बाय सहवाज, नंबर 3 पे सैयद सहवाज बैटिंग करेंगे। 4 बॉल 4 रन, एक चौका, 2 डॉट बॉल, 1 विकेट। टाइगर क्लब बेहतरीन शुरुआत दी गेंदबाजी में। निखिल बॉलिंग मार्क पे, स्ट्राइक पे सैयद सहवाज। ডানহাতে ব্যাটারের জন্য উইকেট রক্ষক ছেড়ে শর্ট ফাইন লেগ স্লিপ, গালি পয়েন্ট কাভার। ব্যাটে খেলতে পারেননি, সম্ভবত পায়ে খেলেছেন, একটা জোরালো আবেদন ছিল, তবে না, রঞ্জিত পাটিদা এই আবেদনে সাড়া দেওয়ার প্রয়োজন মনে করেননি। এবং পাওয়ার প্লেতে যে দুজন খেলোয়াড় ডানহাতি ব্যাটারের জন্য সার্কেলের বাইরে, আপাপুল ডিপ স্কোয়ার লেগ, ডিপ মিড উইকেট, স্ট্রং জোন, নিঃসন্দেহে সায়েদ শাহবাজ, সেই কারণে অন সাইডে দুজন ফিল্ডার রাখা হয়েছে, মিড উইকেট এবং ডিপ স্কোয়ার লেগ। ओवर की आखिरी बॉल, 4 रन हुए इस ओवर में, जाने दिया, कोई छिड़कानी नहीं। बेहतरीन ओवर, मात्र 4 रन, एक चौका, और सारी बॉल पे देखिए मजबूर किया बल्लेबाज को। पहला ओवर सफल ओवर, एक ओवर के बाद 4, एक विकेट हानि 11। একদমই পাওয়ার প্লেতে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ যেটা, নিখিল সিং কিন্তু উইকেটের বাইরে শরীর থেকে দূরে বল করলেন না, ব্যাটারকে বাধ্য করলেন খেলতে প্রত্যেকটা বল। একটা বল কোথাও পায়ে লেগেছিল, সেখানেও একটা আবেদন এসেছিল। এটাও একটা রণনীতি হয় শুরুর দিকে আপাপুল, বোলারের সাহস লাগে যে আমি উইকেট টু উইকেট বল করব, সেখানে মার খেয়ে যেতে পারি, আমি বড় শট আসতে পারে। সেই জায়গায় নিখিল সিং এখানে কিন্তু তার শক্তিটা প্রদর্শন করে গেলেন এবং দ্বিতীয় ওভারে যখন তিনি বল করতে আসবেন, তার মনোবলটা আরো কয়েকশো গুণ বাড়বে। কারণ উইকেট টু উইকেট বল করে মাত্র 4 রান দিয়ে একটা উইকেট পাওয়ার প্লে প্রথম ওভার, সেটা খুব একটা সহজ কাজ নয়। और ये देखिए बैटिंग स्कोर कार्ड अगर बात करें अभी तक सैयद सहवाज की जो इनिंग्स रही है, टूर्नामेंट में अच्छा परफॉर्मेंस किया, हर टीम के विरुद्ध वो रन बनाए। जो कह रहे थे पायल मल्टीप्लाजा के विरुद्ध जरूर स्टार्ट मिला नहीं, लेकिन उसके बाद कुल्टी के विरुद्ध कोई रन नहीं, लेकिन हयात गारमेंट्स के साथ আবহ প্রত্যেকের জন্য আসছে আসানসোলের লোকো গ্রাউন্ড থেকে। আমরা কমেন্ট্রি বক্স থেকে বল বাই বল আপডেট আপনাদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করছি। প্রভাত দাস, নতুন ওভার, ভাগিরথ একটু তাড়া করে খেলার চেষ্টা, স্টাম্পের বাইরে বল, ফ্লাইং স্লিপ জোন, সেখান থেকে ফেরত আসার ফাঁকে রান আসবে কি একটা, সম্ভবত না, না রান নেওয়ার তাগিদরা দেখালেন না, ফিল্ডার ছিলেন। बिल्कुल 4 है दोनों शुरुआत में कि थोड़ा टाइम ले, लेकिन आपको हर ओवर 1-2 शॉट आपको लाने होंगे। प्रभात दास बॉलिंग कर रहे हैं, अपने कोटे का पहला ओवर, इस पारी का दूसरा ओवर। एक तरफ भागीरथ, एक तरफ सहवाज, 4 रन बने। ओवर की अगली बॉल, आगे निकले फुल टॉस बॉल, पीछे फील्डर ले रखा है, तारीफ करने होंगे फील्ड सेटअप, जिस प्रकार से बॉलिंग कर रहे हैं उसी हिसाब से फील्डिंग लिया गया है। अमित फील्डर सिंगल आया इस बॉल पे। একদমই ফিল্ড সেটআপ সেটা খুবই প্রয়োজন। তুমি কোন জায়গায় বল করতে চাইছো সেই অনুযায়ী ফিল্ড সেটআপ তুমি করেছো কিনা, এবং ফিল্ড সেটআপ অনুযায়ী তুমি বল করছো কিনা, এই জায়গাগুলো খুব ডিফিকাল্ট হয়, সব সময় এক্সিকিউট করা খুব একটা সহজ কাজ হয় না। প্রভাত দাস গত বলে সেটা করে দেখিয়েছেন। সায়েদ শাহবাজ তিনি এবার ব্যাট করবেন 5-1 উইকেটে। হানি 11 এখনো পর্যন্ত স্কোর। যারা এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে লাইভ স্ট্রিমিং এ জুড়লেন কিংবা লোকো গ্রাউন্ডে উপস্থিত হলেন এবিপিএল এর আজকে ফাইনাল ডেতে, আরো একবার জানাই ফার্স্ট সেমিফাইনাল অফ দ্য টুর্নামেন্ট টসে জয়লাভ করেছে টাইগার ক্লাব। তারা প্রথমে বল করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, ব্যাট করার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছে হানি 11 কে। লাইভ আসছে SG18 স্পোর্টস ইউটিউবে। हवाई शॉट कैच का कॉल है, लेकिन शायद दर्शक के लिए है। तो जो कह रहे थे इनके अंदर एबिलिटी है, लेकिन आज कैप्टन इनके ऊपर फिर से भरोसा दिखाया है। बेहतरीन छक्का सैयद शाहबाज। খুব প্রয়োজন ছিল আপাপুল এই শটটা। পাওয়ার প্লেতে এখনো পর্যন্ত শুরুর দিকে একটাই বাউন্ডারি এসছে, সেই জায়গায় হানি 11 একটু তলানিতে মনোবল তাদের চলে এসেছিল। এই শটটা তাদের নতুন করে অক্সিজেন দেবে, কারণ প্রথম 3টে ওভার পাওয়ার প্লে, একটা ওভার তোমার খারাপ গেছে, কামব্যাক তোমাকে করতে হবে সেমিফাইনালের মঞ্চ। रिप्ले में देखिए आप जिस तरह से पोजीशन में आए, बहुत ही आसानी से मिड विकेट के ऊपर बेहतरीन छक्का शाहबाज। ओवर की अगली बॉल प्रभात दास चल पड़े, देखा परखा, जाने दिया अब स्टंप से थोड़ा दूर, कोई रन नहीं। और जो प्लानिंग है, ज्यादातर बॉल बाहर डाल रहे हैं। 1 ओवर 4 बॉल 11 विकेट, पहले ओवर से आए थे 4 रन, इस ओवर से 7 रन, तो वापसी कर रहे हनी 11। একদমই প্রথম ওভারে যখন একটা উইকেটের পতন ঘটে গেছে, তোমার ওপেনিং ব্যাটার ফেরত গেছে, হুট করে দুমদাম করে তুমি যদি ফেরত আসতে চাও সেটা মুশকিল হবে। তোমাকে স্টেপ বাই স্টেপ একটু আস্তে আস্তে এগোতে হবে। সেই লক্ষণটা আমরা দেখতে পাচ্ছি হানি 11 এর মধ্যে, যেখানে মাত্র 4টে রান এসেছিল প্রথম ওভার থেকে, 7 রান, একটু প্রোগ্রেস কোথাও গ্রাফে আমরা দেখতে পাচ্ছি। अभी भी 2 बॉल बाकी इस ओवर में।
ओवर पिच बॉल थोड़ा क्रॉस गए थे, समझ नहीं पाए सहवाज, डबल बाइंड में से कहाँ खेलूं, लॉन्ग ऑफ पे या मिड विकेट पे, इसी दुविधा में बॉल निकल गई। 5 बॉल अभी तक, एक छक्का एक सिंगल, 3 डॉट बॉल। तो डॉट बॉल समझे प्रेशर बनेगा। একদমই পাওয়ার প্লেতে যদি ডট বল হয় সেটা নিঃসন্দেহে প্রেসার থাকবে। 9 জন খেলোয়াড় সার্কেলের মধ্যে রয়েছে, সেই জায়গায় প্লেসমেন্টটা খুব জরুরি, সেটাই করার চেষ্টা করছেন। একটা ভালো কাভার ড্রাইভ কিংবা স্কোয়ার কাট, স্কোয়ার ড্রাইভ, একটা ভালো সুইপ শট হয়তো আমরা দেখতে চলেছি। লাস্ট বল অফ দ্য ওভার, সৈয়দ শাহবাজ এক্ষেত্রে অফ ড্রাইভ করেছেন, লং অফ অঞ্চলে প্রোটেকশন রয়েছে। ওভারের শেষ বল থেকে একটাই রান এসছে। 2 ओवर के बाद 12, एक विकेट, पहले ओवर से 4, दूसरे ओवर से 8। तो शुरुआत ठीक ठाक है दोनों टीम के लिए, लेकिन विकेट का फैक्टर हो सकता है। एक तरफ भागीरथ है, वो संभल के खेल रहे, सहवाज चांस ले रहे 6 बॉल से 7, लेकिन अब जरूरत है आपको रन रेट पे थोड़ा सुधार लाने का, क्योंकि 10 ओवर का मैच है। आप शुरू से चाहते हैं शुरू में 10 रन पर ओवर, 12 रन पर ओवर आपको स्टार्ट अगर मिल जाए तो अंत के ओवर में आप आराम से 120 130 तक पहुंच सकते हैं। একদমই সেটাই লক্ষ্য হওয়া উচিত, এবং সেই জায়গায় নিখিল সিংকে আনা হয়েছে। তার কোটা দ্বিতীয় ওভার, 7 ম্যাচ থেকে এখনো পর্যন্ত 11টা উইকেট তার, এবং বেস্ট পারফরম্যান্স এই টুর্নামেন্টে। 18 রান দিয়ে 3 উইকেট এবং হল অফ 3 দুবার অর্জন করেছেন। ইকোনমি 9.54 নিখিল সিং, এবং তার ক্যারিয়ারটা দেখে নিচ্ছি আমরা এই টুর্নামেন্টে তার পারফরম্যান্স। প্রথম বল, উইকেট নিখিল সিং। জাদু কাঠি বোধহয় আজকে ছোঁয়াচ্ছেন নিখিল সিং দলের জন্য। টাইগার ক্লাব ক্যাপ্টেন তিনি, টসে জয়লাভ করে বল করার সিদ্ধান্ত ছিল। নিচে খুশি হবেন, সতীর্থরা খুশি হবে, ডাগ আউট প্রত্যেকে খুশি হবেন। ব্যাক টু ব্যাক 2টো ওভার বল করছেন, এবং 2 ওভারে 2টো উইকেট তার নামে এখনো পর্যন্ত লেখা হয়ে গেল। देखिए कैप्टन खुद है बॉलिंग करने और दोनों ओवर में विकेट निकाले। समझदा आपको एक सवाल मैं करता हूं, आपको क्या याद है आखिरी वो कौन गेंदबाज है जो कैप्टन भी थे, पहला बार बॉलिंग किए थे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में? মুশকিল। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের ফরম্যাটের কথা তুমি বলছো। প্রথম ওভার আমাদের কাছে স্ট্যাটিস্টিশিয়ান নেই, আমরা ক্ষমা প্রার্থী, সারেন্ডার করছি আমরা। কিন্তু আপাপুল যদি তোমার কাছে থাকে তাহলে আমি তোমাকে নিঃসন্দেহে শুভেচ্ছা বার্তা দেবো যদি তুমি শেয়ার করতে পারো। देखिए मुझे जितना याद है मुस्तफा मुर्तजा হতে পারে বাংলাদেশের। जी हाँ, और इधर रिसेंटली अगर बात करूँ तो मैं भी बुमराह जब लीड करते टेस्ट टीम को। একদমই, এই জন্যই আপাপুলকে এক্সপিরিয়েন্সড আমরা বলি, তথ্যের ভান্ডার আমরা বলি আপাপুলকে। এবার কিন্তু বল মাঠের বাইরে যাবে, ডিপ ব্যাকওয়ার্ড স্কয়ার লেগের উপর দিয়ে 6। নিশান্ত আগরওয়াল এলেন, দেখলেন এবং জয় করলেন। যে পরিস্থিতিতে ব্যাট করতে এসেছেন নিশান্ত, দলের পরিস্থিতি খুব একটা ভালো জায়গায় নেই, কিন্তু এই জায়গায় এসে টাইমিং করা, কানেক্ট করা, সাহসী সিদ্ধান্ত, উড়িয়ে খেলা, কোথাও না কোথাও সফল হলেন। बिल्कुल, और देखिए युवा बल्लेबाज है, इनसे पहले इनको ओपनिंग के लिए देखा गया था, लेकिन आज कैप्टन इनको मध्य क्रम में लेके आए कुछ अलग सोच के साथ। ओवर की अगली बॉल, फुल टॉस बॉल, गैप ढूंढना चाह रहे थे, पॉइंट पे फील्डर मौजूद, थोड़े से मिसफील्ड, रन पूरा कर लेंगे। ये देखिए समझ साहब इनकी जो मेंटालिटी, पिछले बॉल पर छक्का, इस बार सिंगल भागे, हर बॉल पे वो चांस नहीं ले रहे हैं, संभल के खेल रहे हैं। নিশান্তের জন্য নিঃসন্দেহে আমি বলতে চাইবো ভয় ডরহীন সুদর্শন, এটাই হওয়া উচিত। এই মঞ্চ তোমাদের জন্য, তোমরা জয় করো এই মঞ্চ। আসানসোল সাব ডিভিশন থেকে প্রচুর প্লেয়ার আসবে আগামী দিনে বাংলা ক্রিকেট, ভারতীয় ক্রিকেটে তারা নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করবে, এটাই এই টুর্নামেন্টের উদ্দেশ্য। সেই জায়গায় নিশান্ত, 2টো উইকেটের পতন ঘটে গেছে, পিছে এসে পিছনের কথা ভাবছেন না, সামনের কথা ভাবছেন। যে অতীত তোমাকে দুঃখ দেয়, যে অতীত তোমাকে কষ্ট দেয়, সে অতীতের কথা বারবার মনে করা খুব একটা লাভের কাজ নয়। তোমাকে এগোতে হবে ভবিষ্যতের একটু আলো, একটু রে অফ হোপ, সেটা নিয়ে এগোচ্ছেন নিশান্ত। ভালো ব্যাটিং, कट करने का प्रयास, बॉल थोड़ी सी मानो अंदर आई। लेफ्ट हैंड गेंदबाज, लेफ्ट हैंड बैटर, अनुमान देखते हैं हम लोग चांस लेते हैं लेफ्ट हैंड बैटर जब लेफ्ट हैंड गेंदबाज होते हैं सामने, लेकिन इस वक्त भागीरथ बिल्कुल रीड नहीं कर पा रहे हैं निखिल सिंह को। 2 ओवर 4 बॉल 19 रन 2 विकेट। इस बार थोड़ा दूर जाने दिया, एक और डॉट बॉल, 3 ओवर, एक छक्का लगा है इस ओवर में, एक सिंगल, लेकिन 2 लगातार डॉट बॉल, 7वें विकेट है। ये वो बॉल समरेजा নিখিল সিং, তার কথা আমরা বারবার বলছিলাম, এখনো পর্যন্ত অনবদ্য বোলিং করছেন নিখিল সিং। যে 2টো উইকেটের পতন বিপক্ষ শিবিরে, 2টো উইকেট তার দখলে। পরের বল, এবার কিন্তু স্টেপ আউট করে খেলেছেন, লফটেড শট মাঠের বাইরে যাবে, কাউ কর্নার অঞ্চলের উপর দিয়ে ভাগীরথের ব্যাট থেকে একটা ওয়েল কানেক্টেড শট, 6 মো।
25 रन 3 ओवर के बाद 2 विकेट गंवाए, दोनों विकेट निखिल के खाते में। पावर प्ले का फायदा मिला है कह सकते हैं आप टाइगर क्लब के लिए, क्योंकि 3 ओवर 25 ये बहुत रन है नहीं। তবে প্রথম ওভারে যে চিত্রটা তৈরি হয়েছিল তার থেকে অনেকটা বেটার জায়গায় হানি 11 এলো, এটা তোমাকে বলতে হবে। কারণ মাত্র 4 রান ছিল প্রথম ওভারে, একটা উইকেটের পতন ঘটেছিল, সেখান থেকে দ্বিতীয় ওভার থেকে সম্ভবত 7 কিংবা 8 রান এসছে। তৃতীয় ওভারে প্রোগ্রেসটা আরো একটু হলো, দুটো ওভার বাউন্ডারি এই ওভার থেকে এসছে, 13টা রান এসছে। কামব্যাক হানি 11, আমি বলবো খুব ভালো কামব্যাক হচ্ছে। जी आप देखना होगा पावर प्ले के बाद कैसे बैटिंग करते हैं, क्योंकि फील्डिंग खुल गया। 5 खिलाड़ी रहेंगे 38 सर्कल के बाहर। प्रभात है बॉलिंग के लिए, निशांत 2 बॉल से 7, भागीरथ 5 बॉल से 7। एक पार्टनरशिप चाहिए आपको, 30 रन 40 रन अगर आप जोड़ते हैं तो फिर आने वाले जो बल्लेबाज होंगे उनके लिए मौका होगा कि वो आते ही बड़े शॉट लगाए और टीम 110 120 तक पहुंचे। ओवर की पहली बॉल, এই ফেজটা খুব গুরুত্বপূর্ণ হবে আপাপুল, এরপরে 3টে ওভার, ম্যাচের অনেক কিছু নির্ভর করবে। নিশান্ত দেখে শুনে খেলেছেন, আবারও পয়েন্ট অঞ্চলের দিকে রান আসবে। নিশান্তের একটা ভালো দিক তুমি দেখছো, প্রত্যেকটা বলে কিন্তু রান পাচ্ছেন, স্ট্রাইকটা রোটেট করছেন। ডট বল খেলা মানে তোমার উপর চাপ বাড়বে, পরের বলে তোমাকে আগ্রাসন দেখাতে হবে, সেই জায়গায় তুমি বড় হিট করতে গিয়ে আউট হয়ে যেতে পারো। কিন্তু সিঙ্গেল সবসময় তোমাকে আত্মবিশ্বাস দেয়, এটা কমেন্ট্রি বক্স থেকে প্রত্যেকবারই আমরা বলে থাকি। সেই জায়গায় ভয় ডরহীন সুদর্শন নিশান্তের কথা আমরা বারবার বলছি, এখনো পর্যন্ত খুব পজিটিভ ভাইবস। काफी रिलैक्स होकर खेलते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं, बॉल की मेरिट पे शॉट खेलते हैं। ओवर की अगली बॉल, छोटी गेंद पुल करने का प्रयास था, शॉट फाइनल पे फील्डर मौजूद और फंस गए जाल में, कोई गलती नहीं, आसान सा कैच, विकेट नंबर 3। तो विकेट का सिलसिला जारी है समृद्धा। একদমই নিয়মিত অন্তরালে উইকেটের পতন কিন্তু হতে চলেছে, যেটা খুব একটা ভালো সংকেত নয়। ভগীরথ তিনি 7টা রান করে ফেরত যাচ্ছেন 6 বল থেকে। প্রভাত দাস তিনি উইকেট পেলেন। রিপ্লেতে আমরা দেখে নিচ্ছি অফ স্টাম্পের অনেক বাইরের বল, কোন জায়গার বল, তুমি কোন জায়গায় খেলতে চাইছো। এটা যদি বেটার হতো, স্কোয়ার অফ দ্য উইকেট তুমি খেলতে পয়েন্ট অঞ্চল বা কাভার পয়েন্টের দিকে, সেটা নিঃসন্দেহে একটা রান হয়তো তোমাকে এনে দিত, এই বিপর্যয়টা আসতো না। এবং শর্ট ফাইনালে খেলোয়াড় কিন্তু কোনো ভুলচুক করেননি, একটা রেগুলার ক্যাচ তার জন্য। অমিত উইকেটের পতন ঘটে গেল। हेलो, देखिए समृद्धा, वजह ये है मेरे ख्याल से शायद वो जो ताकत जनरेट करना चाह रहे थे मिड विकेट पे वो कवर पे नहीं कर पाते, इसलिए वो ट्राई की थे मिड विकेट पे, लेकिन संपर्क अच्छा हुआ नहीं और फंस गए जाल में। শক্তি দিয়ে সব সময় তুমি সবকিছু জয় করতে পারবে না, ভালোবাসা দিয়ে সবকিছু তুমি জয় করতে পারবে, সেটাই বোধহয় করে দেখালেন প্রভাত দাস। সামনের দিকে একেবারে রক্ষণাত্মক ভঙ্গিমা, একটা রান। সত্যেন্দ্র সাও এবং নিশান্ত আগরওয়াল দুই অপরাজিত ব্যাটার। সত্যেন্দ্র সাও এসেই খাতা খুললেন, 27 3 উইকেটে হানি 11। চতুর্থ ওভারের খেলা চলছে, 10 ওভারের ম্যাচ, T10 ক্রিকেট ABPL সিজন 2 ফাইনাল ডে, প্রথম সেমিফাইনাল। আবারও এক্সট্রা কভার অঞ্চলের দিকে ড্রাইভ, এই বলটাও কি সীমানার বাইরে যাবে। ওয়েল স্টপ, ওয়েল স্টপ, ওয়েল স্টপ, ওয়েল স্টপ, দুর্দান্ত স্টপ আপাফুল, সচরাচর হয় না এই ছবিগুলো। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের আন্তর্জাতিক প্ল্যাটফর্মের ছবি বোধহয় আমরা দেখলাম। और देखिए थोड़ा वो लेट से भागे थे, उनको ऐसा लगा शायद शॉर्ट कवर के फील्डर पकड़ लेंगे। ये रिप्ले में एक बार फिर से देखना चाहेंगे, बहुत अच्छा शॉट था, फील्डर समझ नहीं पाए शॉर्ट कवर पे, पीछे भागे देबायन, बहुत दूर से पहुंचे बॉल तक और अच्छा फुटवर्क, बेहतरीन स्टॉप, अंतिम समय में बस कुछ इंच का फासला समृद्धा, जिस तरह से ये चौका बचाया। और समृद्धा अगर देखिए इस टीम में जिस तरह से बैटिंग ऑर्डर रहा है, जब तक भागीरथ बैटिंग करते हैं तो फिर राइट हैंड बैटर आते थे, जैसे भागीरथ आउट हुए अब सत्येंद्र आ गए, तो लेफ्टी राइट का सिलसिला जारी है, जो कॉम्बिनेशन लेफ्टी राइट वो बनाए रखे इस टीम में हनी 11। এর মধ্যে আরো একটা বলের খেলা হয়ে গেল, অফ স্টাম্পের একটু বাইরের বল, তাড়া করে খেলার চেষ্টা। নিশান্ত ব্যাটে বলে করতে পারেননি, উইকেট রক্ষক সেখান থেকে সোনু দাস সম্ভবত রয়েছেন, তার হাত ঘুরে বল ফেরত আসছে। প্রভাত দাস ওভারে শেষ বল করবেন, 4টে রান, একটা উইকেট 5 বল থেকে এই ওভারটা থেকে। নিশান্ত বেটার ক্রিকেট, কভার ড্রাইভ, রান পাবেন একটা, স্ট্রাইকটা নিজের কাছে থাকলো। ওভারের পরিসমাপ্তি আফটার 4:30 for 3 হানি 11। ये बेहतर है 3 ओवर का अगर देखा जाए, उसके बाद फिर रनों पे अंकुश लगाना। इस ओवर से मात्र 5 रन, 25 रन था 3 ओवर, इस ओवर से 5 यानी 30, 3 विकेट, तो 6 ओवर है आपके पास। अगर 6 ओवर में आप 10 के हिसाब से देखें 60 रन, अगर 12 के हिसाब से देखें तो फिर मेरे ख्याल से 100 तक पहुंचना चाहेंगे हर हाल में। খুব একটা ভালো টোটাল হবে বলে মনে হচ্ছে না। 120 সেটা ফাইটেবল স্কোর হতে পারে, কারণ এই টুর্নামেন্টের অতীত ইতিহাস, লিগ স্টেজ কিংবা সুপার 8
সেখানেও লিগের মজা পেয়েছি আমরা। 168 পর্যন্ত স্কোর হয়েছে এবং প্রজেক্টেড স্কোর যেভাবে চলছে, যদি 7.50 কারেন্ট রান রেট এইভাবে যায় 75 অবধি পৌঁছবে, একটু যদি গ্রোথ হয় 8 করে যায় 78 এবং 10 করে গেলে 90, সেটাও খুব একটা ভালো পিকচার হবে না। अंत के ओवरों में शायद कुछ बड़े शॉट आएंगे, 110 120 पहुंच जाएंगे। अभी तक जिस तरह से इनकी बैटिंग ऑर्डर रही है हर मैच में। और फिलहाल निशांत अग्रवाल 6 बॉल से 11 स्ट्राइक पे। আমার মুখের কথাটাই তুমি কেড়ে নিলে, নিশান্তের কথা বলছি। আমার মনে হচ্ছে আজকে নিশান্ত হয়তো একটা ভালো ইনিংস খেলতে পারে, পজিটিভ ভাইবস তার মধ্যে দেখছি। নাশিদ আরশাদ নতুন ওভারে এসেছেন, নিশান্তের কথা আমরা বলছিলাম, বোধহয় কথাটা নিশান্তের কানে খুব দ্রুত চলে গেল মিড উইকেটের উপর দিয়ে। শুধুমাত্র নিশান্তের ব্যাটে বলে হচ্ছে এটা নয়, একটা খেলোয়াড় যেদিন নতুন দিন শুরু করে, পিচে আসে 22 গজে আসে, তার প্রথম দুটো তিনটে বল দেখে কিন্তু কোথাও আমরা অনুভব করতে পারি আপাপুল যে পজিটিভ ভাইবস, একটু আত্মবিশ্বাস, সেই চেহারাই কিন্তু এই ভয় ডরহীন সুদর্শন নিশান্তকে আমরা দেখতে পাচ্ছি। তিনি এগিয়ে চলেছেন তার গতিতে, দলের জন্য বেস্ট এফোর্ট দিচ্ছেন। যদি তিনি টিকে যান 7-8টা ওভার পর্যন্ত, স্কোরটা হয়তো 120 130তেও পৌঁছতে পারে। हेलो 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 बेहतरीन वापसी, पिछले बॉल पर छक्का, उसके बाद विकेट। नासिद अरशद, समृद्ध इस लड़के को मैंने पहली बार देखा था 2018 में, मुझे अभी भी याद है। वो लेदर बॉल खेलने के लिए आए थे अंडर 13 रानीगंज में, और उस टाइम इनकी जो गति थी गेंदबाजी में, और अभी भी वो रिदम, मैं चाहूंगा ये और बेहतर करे, चाहे लेदर बॉल हो चाहे टेनिस बॉल हो। लेकिन आज आती छक्के के बाद विकेट निकाला है हनी 11 36 पे 4। এবং নাশিদ আরশাদকে ক্যাপ্টেন যে জায়গায় নিয়ে এসেছেন, সেটাও তোমাকে ভাবতে হবে। নিশান্ত ক্রমশ সেট হচ্ছিলেন, ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠার আগেই তাকে ডাগ আউটের রাস্তাটা দেখিয়েছেন। একটা জোরালো আবেদন ছিল এক্ষেত্রে, লেগ বিফোর উইকেটের, তবে না, রঞ্জিত পাড়িদা তিনি সাড়া দেননি। লেগ বাইট সূত্রে এই রানটি এলো, অতিরিক্তের হাত ধরে একটা রান। देखिए समृद्ध, जब गेंदबाज गेंदबाजी करते हैं तो उनको ऐसा लगता है पैर पे लगते ही वो बॉल आउट है, एलबीडब्ल्यू है, लेकिन अंपायर कह रहे हैं नहीं, हर बॉल एलबीडब्ल्यू नहीं होती है पैर पे लगने पे, कुछ बॉल बाहर भी होती है, कुछ बॉल हाइट होते हैं, तो इसलिए अंपायर ने शायद इसे नॉट आउट का। नासिद अरशद तैयार फिर से एक बॉलिंग के लिए, ओवर की अगली बॉल, कैच है, कॉल है, फील्डर बहुत दूर है, का कॉर्नर पे बॉल फ्लैट गई है, फ्लैट छक्का आता हुआ इस बॉल पे। सतेंद्र शाह भागीरथ की जगह पे आए आउट होने के बाद, उस जगह को अच्छा फुलफिल कर रहे हैं। ওভার বাউন্ডারি অনেকটা সময় পড়ে মাঝখানে যে রিদিমটা তৃতীয় ওভার থেকে একটু পেয়েছিল, সেই রিদিমটা আবারও ব্যাক করানোর চেষ্টা চলছে। সত্যেন্দ্র সাউ, তার ব্যাট থেকে নয়নাভিরাম একটা শট এসছে। রানের গতিটা বাড়াতে হবে, উইকেটের পতন যাই হোক, রান আনতে হবে স্কোরবোর্ডে। নাশিদ আরশাদ, পঞ্চম বল, নো বলের সংকেত, নো বল, ফ্রি হিট। এই জায়গায় অল আউট অ্যাটাকে যেতে হবে সত্যেন্দ্র সাউকে। शायद यहाँ पे पिचिंग का मामला है और सोनू दास रिव्यू के लिए जा रहे हैं। मैं क्लियर कर दूं,
अगर विकेट क्रॉस होने के बाद पिच से बाहर बॉल होती है फिर वो वाइड करार दी जाएगी, अगर विकेट से पहले पिच के बाहर ड्रॉप होती है फिर वो नो बॉल होगी। तो शायद सोनू दास को ऐसा लग रहा है कि विकेट क्रॉस होने के बाद बाहर ड्रॉप हुई है, इसलिए रिव्यू की मांग की है। ऑन फील्ड अंपायर ने इसे नो बॉल दिया था। अब चेक करेंगे तीसरा अंपायर बाला, अंपायर की भूमिका में निर्णय क्या होगा। चेक कर रहे तीसरा अंपायर बाला, बॉल कहाँ पिच हुई है, विकेट क्रॉस होने के बाद बाहर है या फिर विकेट के पहले, ये मामला है। एसडीटी स्पोर्ट्स टेक्निकल सपोर्ट है आपके पास, चेक कर रहे हैं। डिसीजन पेंडिंग, प्लीज वेट। बॉल कहां पे पिच हुई है, विकेट क्रॉस होने के पहले या फिर विकेट से आगे, चेक कर रहे हैं। নিঃসন্দেহে সিদ্ধান্তের জন্য আমরা ওয়েট করছিলাম এবং সিদ্ধান্ত স্ক্রিনে ইতিমধ্যেই চলে এসেছে। হোয়াইট বলের সিদ্ধান্ত আসছে। তো রিভিউটা রিটেন করবে টাইগার ক্লাব। অতিরিক্তের হাত ধরে একটা রান এলো, কিন্তু সেই সুযোগটা স্বাধীনতা তোমার কাছে থাকবে না, ফ্রি হিটের। कोशिश कर रहे हैं सतेंद्र बॉल को बाहर भेजे, लेकिन फिलहाल सिंगल। निखिल सिंह बहुत अच्छी कैप्टनशिप इनकी रही है, जिस तरह से अपने गेंदबाजों को यूटिलाइज कर रहे हैं। नासिद को लाए और आते ही वो विकेट निकाले, इससे पहले प्रभात वो भी विकेट निकाल ले, उससे पहले खुद आए वो विकेट निकाले। तो जो भी गेंदबाज आते हैं विकेट निकालते हैं तो कैप्टन का काम बहुत आसान हो जाता है। একদমই ক্যাপ্টেন লিড করছেন ফ্রন্ট থেকে, এটা সবথেকে গুড সাইন টাইগার ইলেভেনের জন্য। শুধুমাত্র নিজে ভালো বল করছেন তা নয়, সতীর্থদের অক্সিজেন দিচ্ছেন। আর এর মধ্যেই একটা বাউন্ডারি সোনুর ব্যাট থেকে, এবং সঙ্গে সঙ্গে ওভারের পরিসমাপ্তি। 5 ওভারের খেলা শেষ। রিপ্লেতে আমরা দেখে নিচ্ছি কিভাবে লং অফ অঞ্চল দিয়ে বল সীমানার বাইরে, মিড অফ সার্কেলের মধ্যে লং অনেক খেলোয়াড় ছিলেন, একটু চেষ্টা করেছিলেন কোথাও, কিন্তু লং অন থেকে লং অফে এত দ্রুত পৌঁছানো খুব একটা সহজ কাজ ছিল না। বাউন্ডারি দিয়ে ওভারের পরিসমাপ্তি। 5 ওভারের খেলা শেষ। 49, 4 উইকেটে হানি 11। समृद्ध पहले ओवर से 4 रन, दूसरे ओवर से 13 रन, तीसरे ओवर से 8 रन, चौथे ओवर से 5 रन और इस ओवर से 19 रन। 5 ओवर के बाद 49 रन, टोटल 4 विकेट। এবং পরবর্তী ফেজ, পরের 5 ওভারে হানি 11 কোন জায়গায় পৌঁছবে সেটা আপনাদের শোনানোর জন্য কমেন্ট্রি বক্সে একটু পরিবর্তন, টুইস্ট, নতুন কিছু নিয়ে জয়েন করছে মুন্না এবং সঙ্গে অমিত চৌবে। Thank you so much, Samridha. Thank you so much, Afafulda. Asansol Brotherhood Premier League 2025 आज फाइनल डे है। पांच ओवर के बाद 49 पे 4, हनी 11। दो टीमों से जबरदस्त ये मुकाबला है। SD18 प्रेजेंट आसनसोल ब्रदरहुड प्रीमियर लीग सेकेंड एडिशन, फाइनल डे, फर्स्ट सेमीफाइनल। एक तरफ हनी 11, दूसरी तरफ टाइगर क्लब। फ्रंट फुट पे ड्राइव किया, अच्छी फील्ड की जमावट करी हुई है और फील्ड के मुताबिक गेंदबाजी भी कर रहे हैं। स्वागत है मुन्ना जी, जिस तरह से ये मुकाबला अभी तक रहा है। फाइनल डे है और एक टीम यहां से फाइनलिस्ट बनने वाली है। कैसा लग रहा है मैच? अभी अगर देखें 6ठा ओवर चल रहा है। अभी तक अगर देखें ना तो गेंदबाजी अच्छी रही है, दबाव में डालकर रखा है बल्लेबाजों को। थैंक यू सो मच अमित भाई। 5.3 ओवर के बाद 49 पे 4। सभी को बहुत बहुत स्वागत SD18 स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल पे। जितने भी इस वक्त दर्शक लोगों मैदान पे मौजूद है, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फर्स्ट सेमीफाइनल, ऑफ स्टंप से बाहर की गेंद फॉलो किया, वहां जाके गेंद को बस दिशा दिया है। पॉइंट से जब तक बॉल फील्ड हो 1 रन मिलेगा। प्रभात दास बहुत ही अच्छी गेंदबाजी किया है इस ओवर में, 3 डॉट, उसके बाद ये सिंगल। हनी 11 के थोड़ा सा मुश्किल बढ़ता जा रहा है क्योंकि एक बड़ा टोटल सेट करने का जो उम्मीद था वो नजर नहीं आ रहा है। सोनू रहमान 2 बॉल 4, सतेंद्र साव 7 बॉल 9। देखिए इस जोड़ी पे बहुत कुछ निर्भर करेगा कि किस प्रकार से ये पार्टनरशिप बनाते हैं, क्योंकि तेज गति से रन बनाना पड़ेगा। ये अच्छा ओवर अभी तक डाल गए हैं प्रभात दास। ये देखिए एक और अच्छी गेंद, और यही रहा है पूरे टूर्नामेंट की अगर बात करें ना
तो प्रभव दास की गेंदबाजी ताकत रही है टाइगर क्लब के लिए। जब भी गेंदबाजी कप्तान ने सौंपी है किफायती रहे और साथ ही साथ विकेट टेकर गेंदबाज हैं। आज भी अगर देखें ना तो तीसरा ओवर खत्म होने को और अभी तक मात्र 15 रन दिया है। इस ओवर से 2 रन आए हैं, आखिरी बॉल के खेल बाकी है। 51 पे 4, ओवर की आखिरी बॉल, अभी तक सिर्फ 2 रन। सतेंद्र साव स्ट्राइक पे। सतेंद्र को अब यहां से थोड़ा सा अटैक करना होगा क्योंकि वो 7 गेंद खेल चुके हैं। जगह बनाकर बैठक शॉट, टांग दिया गेंद को हवा में, स्क्वायर लेग बाउंड्री के ऊपर से एबीपीएल सुपर सिक्सर, 6 रन। ये अच्छा शॉट खेल गए, आखिरी बॉल से छक्का आया। 8 रन का ओवर, 3 ओवर डाल चुके हैं प्रभव दास, 21 रन खर्च किया है। एक सफलता है इस सेमीफाइनल मुकाबले में। जितनी तारीफ करें सैयद दानिश भैया का, तारीफ करें कमेटी के सभी मेंबर्स जो इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। दूसरा सीजन है और बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर दिया है। चाहे फील्ड की बात करें, फील्ड के बाहर जिस तरह से माहौल बनाकर रखा है पिछले 9 दिनों से, एक बहुत ही जबरदस्त आयोजन जो लगातार आसनसोल के लिए सुर्खियों में रहा है। हनी 11 57 पे 4 है, 6 विकेट 6 ओवर के बाद। इस जोड़ी पे निर्भर करेगा मुन्ना जी कि कितना टोटल सेट होता है, क्योंकि 140-50 नहीं भी बनाते हैं। बड़ा मैच है, सेमीफाइनल है, कम से कम 110-20 तक पहुंचना चाहिए होगा, क्योंकि एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचना चाहेंगे। 6 के बाद 57 पे 4, सोनू रहमान 3 बॉल 5 स्ट्राइक ले रहे हैं। तेज गति की गेंद, वाइड बॉल का इशारा वाइड करार दिया गया। ऑन फील्ड अंपायर, मैदानी अंपायर रंजीत पड़ीदा के द्वारा। नासिर दरसद पहला ओवर महंगा था, 18 रन खर्च किए थे, 1 विकेट चटका दिया था उस ओवर से भी। सोनू रहमान को इस मैच में, सेमीफाइनल में, बिग मैच में इन्हें बैटिंग ऑर्डर में ऊपर भेजा गया है, प्रमोट किया गया है। और अच्छी गेंद, एक्स्ट्रा कवर पे फील्डर मौजूद है। तो देखिए इस टीम की ताकत इसकी गेंदबाजी है। पहले पर्वत दास गेंदबाजी करते हैं पावर प्ले में, और उसके बाद 2 युवा गेंदबाज, नासिर अरशद की बात करें, अमन की बात करें, जिस तरह से ये दोनों युवा गेंदबाजों ने मिडिल में आकर गेंदबाजी करी है, डेथ में आकर गेंदबाजी करी है, कहीं ना कहीं ये ताकत है कप्तान निखिल सिंह की गेंदबाजी। जगह बना के एक और बड़ा हिट, लेकिन इस बार दूरी मिलेगी नहीं। इस बार सतेंद्र साव को जाना पड़ेगा वापस। बड़ी मछली फंसी जाल में, 59 पे गवा दिया हनी 11 ने अपना 5वां विकेट। सतेंद्र साव बैक टू द पवेलियन। 9 बॉल से बनाए 15, 2 छक्का, 166 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी, लेकिन ये पारी बड़ी पारी में कन्वर्ट होना चाहिए था, जो हुआ नहीं, और ये एक कह सकते हैं कि बड़ा झटका लगा है हनी 11 को। देखिए बड़ा शॉट तो खेलना चाहिए ही था, क्योंकि यहाँ पे अब ज्यादा गेंदें बची नहीं है, 24 गेंदों का खेल बाकी था। इस ओवर की ये दूसरी बॉल हो चुकी थी, तो कहीं ना कहीं आपके पास समय कम था। बड़े शॉट के प्रयास में आउट होकर वापस गए हैं सतेंद्र। पिछले ओवर में छक्का जरूर जड़ा था, लेकिन क्या यहाँ से हनी 11 पूरी तरह से बल्लेबाजी बिखरती हुई नजर आई है। लगातार अंतराल से विकेट गिर रहे हैं। अब देखना पड़ेगा कि नए बल्लेबाज क्या कुछ करते हैं। 2 छक्के आए थे सतेंद्र साव के बल्ले से। नासिर अरशद नए बल्लेबाज के लिए आते के साथ मुन्ना जी, बड़ा शॉट खेलना इतना आसान बिल्कुल नहीं है। अब बैटिंग करने के लिए आए हैं श्याम केवट। श्याम केवट भले ही पिछले मैच में ना चले हो, लेकिन ये वो बल्लेबाज है जिन्होंने हनी 11 के लिए हर बार रन बनाया है। हर बार डेथ ओवर में आकर एक कैमियो पारी खेला है श्याम केवट। फिलहाल 1 बॉल से 1 है, अभी खाता खोला। अब सोनू रहमान होंगे स्ट्राइक पे। पिछले मैच में अच्छा बल्लेबाजी किया था सोनू रहमान। बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, कोई संपर्क नहीं, गेंद जाके लगी शरीर पे, डॉट डिलीवरी। 60 पे 5, 6.4 ओवर के बाद 7वां ओवर चल रहा है, सिर्फ बोर्ड पे लगे हैं 60 रन। सोनू रहमान से टीम को उम्मीद होगी, क्योंकि पिछले मैच में जिस तरीके से उन्होंने बड़े स्ट्रोक लगाए थे, वो इस पिच को भाप चुके हैं।
निसंदेह गेंदबाजी बहुत अच्छी हो रही है, सही ठिकाने पे टप्पा है, जिस वजह से बल्लेबाज को खेलना बहुत कठिन हो रहा है। यहां भी देखें तो एकदम जड़ में डाली हुई बॉल, कोई मौका नहीं बल्लेबाज के पास। बहुत कमाल की गेंदबाजी, हर मुकाबले में इस युवा गेंदबाज ने प्रभावित किया और विकेट टेकर हैं। 2 विकेट इस ओवर में भी चटका, इस मुकाबले में भी चटकाया है और एक और विकेट इसी ओवर में, ये दूसरा विकेट है। सोनू रहमान 7 बॉल से 6 रन बनाकर वापस जा रहे हैं। पूरी तरह से लड़खड़ा गई है ये पारी और पटरी पे आई ही नहीं है। 7वां ओवर समाप्त हुआ है, 60 बने हैं बोर्ड पे और टीम ने 6 बल्लेबाजों को गवा दिया है। 79 दर्शक, 2 ओवर 21 रन और 3 सफलता। कमाल की गेंदबाजी, जिस बात का आपने जिक्र किया था वही हुआ है। 79 दर्शक, डेथ ओवर में गेंदबाजी अमूमन कम की है। मिडिल ऑर्डर में बहुत इन्होंने बेहतरीन गेंदबाजी किया, मिडिल ऑर्डर को तोड़ा है, बीच में आकर अच्छा गेंदबाजी कर रहे हैं। एक बार फिर से नासिर अरशद ने अपने आप को साबित किया है। 2 ओवर 21 रन 3 विकेट। हालांकि पहला ओवर महंगा था, लेकिन हमने उसी चीज़ का जिक्र किया कि पहले ओवर में भी नासिर अरशद ने विकेट छटकाया। अब यहाँ से जो मैच है ना, ये जोड़ी के ऊपर है, राकेश और श्याम केवत, इन दोनों के ऊपर। अगर प्रोजेक्टेड की बात करें तो 86 रन इस हिसाब से चलता रहा तो, जो कि इस मैदान के लिए ठीक नहीं है, वो बचना वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। 10 रन प्रति ओवर के हिसाब से 90, 12 रन प्रति ओवर के हिसाब से 96, लेकिन ये थोड़ा सा और ऊपर लेकर जाना पड़ेगा अगर एक ठीक ठाक टोटल सेट करना है तो। क्योंकि टाइगर क्लब के पास ना एक नहीं कई ऐसे बल्लेबाज हैं जो बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज है। चैंपियन बनने की दावेदारी टाइगर क्लब ने पेश किया है शुरू से ही और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है इस टीम का। 60 पे 6, 7 के बाद पहली गेंद, फील्डर मौजूद है, सर्कल भी पार करी नहीं गेंद और यहाँ पे ओवरथ्रो का रन मिल जाएगा। खराब थ्रो, दूसरा भी भाग गए हैं। ऐसे ही भाग्य का साथ चाहिए होगा यहाँ पे। हर एक बॉल पे अभी तो रन बनने चाहिए क्योंकि 17 गेंदों का खेल यहाँ से बाकी है। मात्र 62 बोर्ड पे बने हैं। 6 विकेट गवा चुकी है हनी 11। एक तरफ श्याम केवत है, दूसरी तरफ राकेश साव, दोनों को गेंदबाजी करनी है दूसरी पारी में। तो बोर्ड पे टोटल बनाना पड़ेगा, एक अच्छा टोटल सेट करना पड़ेगा क्योंकि अगर आपको फाइनल तक पहुंचना है, फाइनल की टिकट प्राप्त करनी है तो फिर रन बनाना पड़ेगा। अच्छा शॉट, फील्डर के हाथों से छिटकी है बॉल, आगे की तरफ ड्राइव किया था। भाग्यशाली रहे, भाग्य ने साथ दिया। और ये देखिए कैच, कप्तान निखिल सिंह आगे की तरफ डाइव करी। हाफ चांस था, बहुत मुश्किल नहीं था लेकिन आसान भी नहीं था। बहुत आगे गिरी बॉल, फ्लैट था, इस वजह से ये कैच बहुत कठिन था और अनहोनी को होनी करने के लिए काफी आगे था। यहाँ पर रनआउट का मौका था, क्या कमाल का थ्रो, ऐसा लगा कि मानो रविंद्र जडेजा की यादें ताजा हो गए हो। बहुत तेजी से आए, गेंद को अटेम्प्ट किया और तुरंत ये एक बार देखे ओवर थ्रो और इस थ्रो पे नजर डालें। ओह, बिल्कुल रविंद्र जडेजा की याद ताजा किया इस खिलाड़ी ने। कवर की दिशा में शॉट खेला, सिंगल 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 से काम बनने वाला है नहीं। इस ओवर की अगर देखें ना तो पहली बॉल पे जरूर 2 रन आए थे, लेकिन उसके बाद अगली 3 गेंदों पे 3 सिंगल आया है। निरंजन राउत 4 बॉल से सिर्फ 5 रन दिए हैं। ये फुल टॉस डाल बैठे हैं, लॉन्ग ऑन का खिलाड़ी इंटरेस्टेड था जरूर, लेकिन बहुत सही समय पे पीछे की तरफ गए। सिर्फ 1 रन और मिल पाएगा। गेंदबाजी बेहतर रही है मुन्ना जी, जिस तरह से टाइगर क्लब ने गेंदबाजी करी है, टॉस जीतने के बाद फील्डिंग करने का फैसला, सब कुछ अच्छा घटता हुआ। आखिरी बॉल पीछे मिड विकेट का खिलाड़ी, खुद कप्तान गेंद को फील्ड करेंगे। 5 सिंगल 1 डबल कुल निरंजन राउत के ओवर से आए हैं 7 रन। 8 ओवर के बाद हनी 11 का स्कोर है 67, 6 विकेट के नुकसान पे। बहुत मुश्किल में यह मुकाबला। आप देख रहे हैं आसनसोल ब्रदरहुड प्रीमियर लीग 2K25 सेकेंड एडिशन। आज फाइनल डे है। फाइनल डे में पहला सेमीफाइनल, एक तरफ टाइगर क्लब, दूसरी तरफ हनी 11।
जबरदस्त ये मुकाबला है, बने रहिए SD18 स्पोर्ट्स के साथ। ड्रोन भी बहुत ही प्यारा है इस वक्त नज़ारा ग्राउंड का आप देख सकते हैं। ड्रोन व्यूज़ इस वक्त आपके स्क्रीन पे चल रहा है और ये बहुत ही खूबसूरत दृश्य है। जब स्क्रीन पे नज़र पड़ता है इस तरीके का दृश्य तो फिर दिल बाग बाग होता है। बहुत ही प्यारा नज़ारा, ये है लोगों का प्यारा मैदान। पहली गेंद, डॉट डिलीवरी, अरशद। क्या खूबसूरत ये मैदान है, ये तो ऐतिहासिक मैदान है। 1982 में रणजी ट्रॉफी का भी मैच यहाँ पे खेला गया और जिस दिन से हम लोग आए हैं बहुत जबरदस्त माहौल बना हुआ है। मैं तो देखते बयां करते हुए शब्द नहीं है। देखिए पहली गेंद डॉट रही है, नासिद अरशद विकेट टेकर गेंदबाज है। तीसरा ओवर कप्तान ने दिया है, पारी का ये 9वां ओवर है। किनारा, बाहरी किनारा, शॉर्ट थर्ड पे फील्डर मौजूद, सिंगल मिल जाएगा। मुन्ना जी कहते हैं ना कि पानी से नहाने वाले लिबास बदलते हैं, पसीने से नहाने वाले इतिहास बदलते हैं। पिछले 9-10 दिनों से जो मेहनत करी है ना इस टीम ने, और उससे पहले की मेहनत, वो रंग लाते हुए नजर आई है। खास करके गेंदबाजी बहुत जबरदस्त रही टाइगर क्लब की। जोन में थी बॉल, इस बार गेंद को लॉफ्ट किया, गेंद जाएगी मिड विकेट के ऊपर से, दूर नहीं कोसों दूर। ABPL सुपर सिक्सर। अभी तक उतना ज्यादा मौका मिला नहीं था, बड़ा स्ट्रोक खेलने का, हाथ खोलने का चांस नहीं दे रहे थे, लेकिन इस बार गलत गेंद और उसका पूरा फायदा उठाया राकेश और श्याम के वतीन। दोनों के ऊपर निर्भर है टीम कि हनी 11 को कहां तक लेकर जाएंगे। इस बार कवर की दिशा में पीछे फील्डर भागकर जाएंगे, कैच पकड़ लिया है, छक्का आया था, अगली गेंद पे विकेट चटका दिया है। एक तेरी एक मेरी, 100 सोनार की एक लोहार की। नासिद अरशद ये विकेट टेकर गेंदबाज है, पिछली बॉल पे छक्का आया और राकेश साहू को अगली गेंद पे चलता कर दिया। एक बार देखते हैं कैसे विकेट चटकाया है। ये देखिए इस बार कवर के ऊपर से खेलने का प्रयास था, वो ताकत मिली नहीं शॉट में और दूरी थी नहीं। अच्छा कैच पकड़ा आउटफील्ड में फील्डर ने। अलग अलग एंगल से आप देख सकते हैं SD18 स्पोर्ट्स पर, हर तरीके से दिखाने का प्रयास रहता है। ये देखिए बहुत पीछे गए थे, क्रीज का अच्छा इस्तेमाल किया जरूर था, लेकिन वो एलिवेशन नहीं मिल पाया, वो दूरी नहीं मिली जो राकेश चाहते थे। विकेट आया, विकेट के साथ बहुत ही कमाल का गेंदबाज है ये। 4-4 विकेट इस मुकाबले में। बड़े मंच का सरपंच। सेमीफाइनल मुकाबला सपने जैसा होता है किसी भी खिलाड़ी के लिए मुन्ना जी, लेकिन बड़े मंच पे अगर परफॉर्म करना, अपील तो यहां भी हुई है। देखिए गेंदबाजी जबरदस्त करी है, बाएं हाथ के गेंदबाज हैं और मैंने पहले दिन से देखा है कि एक अलग लय में ये गेंदबाज आया है गेंदबाजी करने के लिए। नासिद अरशद ज्यादातर ऊपर गेंदबाजी हुई है, यॉर्कर, लोअर फुल टॉस। एक गेंद स्लॉट में थी, वहां पर एक छक्का निकला था राकेश कुमार सिंटू के बल्ले से। उसके बाद अगले गेंद पे विकेट चटकाया, विकेट भी चटकाया तो ऊपर वाली गेंद पे। लेकिन ये ड्रोन व्यू, ये प्यारा सा मैदान, लोगों का ये मैदान, खूबसूरत दृश्य आप सबों के सामने रखा गया। SD18 स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से जिस तरीके से टेक्निकल टीम काम कर रही है उसके लिए प्रशंसा तो बनती है। बहुत ही शानदार। जबरदस्त मैदान, जबरदस्त ये टूर्नामेंट रहा है, जबरदस्त ये सफर रहा है। जब से आए हैं तब से जिस तरह से फैसिलिटीज दी गई है। एक और डॉट बॉल के साथ आखिरी ओवर है। हनी 11 संघर्ष करती हुई बैट के साथ। मात्र 75 रन बने हैं बोर्ड पे, 5 गेंदों का खेल बाकी है। ये मुकाबला कहीं से भी वापस करने दिया नहीं है, वापसी करने का रास्ता भी दिया नहीं है। निखिल सिंह की कप्तानी, नासिद अरशद, प्रवत दास, निरंजन राउत,
जैसे गेंदबाजों की गेंदबाजी और फिर उसके बाद बैटिंग ऑर्डर में जिस तरह से पावर प्ले का इस्तेमाल किया, हर मुकाबले में एग्रेसिव बल्लेबाजी, वो एक सोच के साथ, एक रवैये के साथ उतरते हैं कि शुरुआत अच्छी करनी है। इस वजह से ये टीम आज सेमीफाइनल में पहुंची है। और जिस तरह से इस बड़े मंच पे आकर परफॉर्म कर रहे हैं ना गेंदबाज, खास करके अगर टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला करते हैं कप्तान, इट्स अ फेयर डिलीवरी। डॉट के साथ शुरुआत, लॉन्ग ऑफ और एक्स्ट्रा कवर के बीच से अच्छा शॉट है। फील्डर ने प्रयास जरूर किया था पर निकल गई है गेंद, मिल जाएगा चौका। चौके के साथ स्कोर में इजाफा। ये देखिए बहुत जल्दी सफल कर गए थे, गेंद डिलीवर होने से पहले मन बना लिया था और गेंद की मेरिट के साथ खेले। चौका मिला, दो फील्डर जरूर थे। किनारा लगा है, पीछे फील्डर मौजूद है शॉर्ट थर्ड का। जब तक गेंद को फील्ड करेंगे, सिंगल आता हुआ, सिंगल के साथ 9.3 ओवर के बाद स्कोर है 80, 7 विकेट के नुकसान पे हनी 11। 80 पे 7। निरंजन राउत कमाल की गेंदबाजी पहले ओवर में भी और इस ओवर में भी। पहले ओवर में सिर्फ 7 रन दिए थे और इस आखिरी ओवर में भी देखा जाए तो मात्र 5 रन 3 बॉल से। कसी हुई गेंदबाजी हुई है आज टाइगर क्लब के द्वारा। लोअर फुल टॉस, स्ट्रेटेजी और प्लान पूरा तरीका से क्लियर है। गेंद शॉर्ट ऑफ लेंथ नहीं डालना है, जब भी गेंद करना है वो ऊपर ही करना है। और लगातार यॉर्कर और लोअर फुल टॉस ही बॉल गिरी है, जिस वजह से बहुत परेशान दिखे हनी 11 के बल्लेबाज। 2 गेंद का खेल बाकी, 80 पे 7। डॉट डिलीवरी, डॉट डिलीवरी। वो बहुत पीछे चले गए थे, कदमों का किया था इस्तेमाल लेकिन गेंद से कहीं दूर थे। आखिरी ओवर, अभी तक 5 रन आए हैं, 3 डॉट गेंदे भी देखने को मिला है। आखिरी बॉल, वाइड बॉल, वाइड बॉल। अभी भी एक गेंद बाकी है, 81 रन बना है। मुन्ना जी, क्या ये रन जो बने हैं बोर्ड पे बचाए जा सकते हैं? कठिन है, लेकिन क्रिकेट कुछ भी जल्द कहना जल्दबाजी होगा। बहुत नजदीक है और ये काफी खुश है इस वक्त टाइगर क्लब का डगआउट। ऊपर गई है गेंद, नीचे खुद गेंदबाज आएंगे, कैच पकड़ेंगे, निरंजन राउत के नाम सफलता आएगा। 81 रन बनाए हैं बोर्ड पे हनी 11 ने 8 विकेट के नुकसान पर। आखिरी बॉल से विकेट आया, खुद फॉलो थ्रू में गेंद को कैच पकड़ा। मात्र 81 पे सिमट गई है टीम। सेमीफाइनल मुकाबला टाइगर क्लब ने अभी तक जो रन चेस किया है ना, जब जब रन चेस करने उतरे हैं सफलतापूर्वक प्राप्त किया है। ये बड़ा मंच है, यहाँ फाइनल की टिकट वाली मैच है। ये मजा आएगा अगले मुकाबले में। ये स्कोर कार्ड आप देख सकते हैं। भागीरथ शुरुआत अच्छा कर नहीं पाए, 7 रन, फैजान 4 रन, सईद 7, निशात अग्रवाल इनके बैट से 17 रन आए, सत्येंद्र साव 15। इन दोनों के ऊपर निर्भर था ये मैच, लेकिन उसके बाद सोनू रहमान 6 रन, श्याम केवट 7, राकेश साव 8, सुजैन 6 रन बनाकर नाबाद रहे। 10 ओवर के बाद बने हैं 81, 8 विकेट के नुकसान पे हनी 11 के। गेंदबाजी देखे निखिल सिंह कप्तान, आज बहुत ही कमाल का गेंदबाजी किया। पावर प्ले में 2 ओवर सिर्फ 17 रन दिए, 2 विकेट चटकाए। प्रभात दास 3 ओवर 21 रन 1 विकेट। नासिद अरशद 3 ओवर 29, 4 सफलता चटका गए नासिद। एक युवा गेंदबाज, टैलेंट निकल रहा है अब। निरंजन राउत 2 ओवर 13 1 विकेट। पहला विकेट 4 पे गिरा, दूसरा भारत, तीसरा 26, चौथा 36, पांचवा विकेट 59, छठा 60 पे, सातवां 74 पे, आठवां 81 पे। देखा जा रहा तो कहीं पे एक साझेदारी हुई नहीं, कहीं भी एक पार्टनरशिप नजर नहीं आया। ये रहा डायमेंशन। देखिए ऑन साइड पे कुछ छक्के लगे, अगर ऑन साइड पे देखे तो 7 छक्के लगे, पूरे पहाड़ी में 7 छक्के लगे, और जिसमें एक स्क्वायर लेग पे है, बाकी 6 छक्का मिड विकेट और लॉन्ग लेग के बीच में काउ कॉर्नर पे है। उसके बाद चौके की बात करें तो एक लॉन्ग ऑन, एक लॉन्ग ऑफ, एक एक्स्ट्रा कवर पे ड्राइव के द्वारा आया था। उसके बाद सिंगल निकाला गया, डबल देखा जाए तो एक भी नहीं, डबल 2 बार एग्जीक्यूट किया।
तो इस तरीके से इस ओवर पहली पारी में रन्स बने हैं, तो कहीं ना कहीं नाखुश होगी टीम, क्योंकि बोर्ड पे मात्र 81 बना है। 82 का टारगेट है, 60 बॉल 82 रन चाहिए जीत के लिए, 10-10 ओवर का मैच। टाइगर क्लब के लिए ये ज़्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए, बट क्रिकेट है और बड़ा मंच है। 82 बने हैं तो बच भी सकते हैं, अब 82 लगे हैं तो बन भी सकते हैं, तो कुछ भी पॉसिबल है। फिलहाल पहला पारी का खेल हुआ मुकम्मल। आप सब देखते रहिए SD18 स्पोर्ट्स के माध्यम से ABPL आसनसोल ब्रदरहुड प्रीमियर लीग सीजन 2। आइए कॉम बॉक्स में अब होगा परिवर्तन, रन चेस क्या होगा या फिर डिफेंड होगा, क्या कुछ होगा कहानी, सुनते हैं राजा बाबू और कमरान हबीब को। और शुक्रिया मुन्ना मुख्तार और अमित चौबे। आसनसोल ब्रदरहुड प्रीमियर लीग सीजन 2 आज फाइनल डे है। पहला मुकाबला टाइगर क्लब के सामने हनी 11। टॉस जीता टाइगर क्लब के कप्तान ने निखिल सिंह, और फैसला किया गेंदबाजी करने का, और उनके गेंदबाजों ने तो काम कर दिया, क्योंकि सामने वाली टीम हनी 11 को रोका है मात्र 82 के स्कोर पे। शानदार गेंदबाजी रही, खुद कप्तान ने एक बार फिर अपनी गेंदबाजी से वो अलग पहचान बनाया इस मुकाबले में। शुरुआत में ही कमर तोड़ के रख दिया हनी 11 की टीम का। पावर प्ले में ही जो विकेट गिरने का सिलसिला रहा वो लास्ट तक वो थमा ही नहीं। तिरासी रनों का टारगेट है टाइगर 11 के सामने। देखते हैं हनी 11 की गेंदबाजी किस तरीके की होती है, क्या 82 रनों को ये बचा पाने में कामयाब होते हैं या फिर चेस कर जाएगी टाइगर क्लब की टीम। हमारे साथ जुड़ेंगे राजा बाबू, स्वागत है आपका। और चलिए बहुत बहुत धन्यवाद कमरान भाई, और स्वागत आप सभी का फिर से एक बार। फाइनल डे और फाइनल से बड़ा फाइनल है ये, सेमीफाइनल। प्रेशर दोनों टीमों के ऊपर होगा। टॉस जीता क्षेत्ररक्षण करने का फैसला निखिल सिंह के द्वारा, जो फैसला लिया गया था उस पे खरे उतरे हैं। फील्डिंग जिस तरीके से हुई है, कैचेस जो पकड़े गए हैं, एफर्ट्स जो लगाया गया, वो सभी चीज़ों में बेहतर दिखी है। मगर अब चेज करने की बारी है। एक तरफ डिफेंड करने के लिए आएंगे डाबला एंड कंपनी, और एक तरफ चेज करने के लिए बीच मैदान में उतर चुकी है निखिल एंड कंपनी। आसान है या नहीं वो तो थोड़ा देर बाद मालूम चलेगा, मगर ABPL का सफ़र, बस इतना कहना है कि इस सफ़र को हम सब ने एंजॉय किया है। इस सफ़र को हमने हर एक दिन, हर एक पल या फिर हर एक मोमेंट को जिया है। ABPL एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे हर एक यंगस्टर को एक बड़ा मंच देने का काम किया है। हर एक यंगस्टर को एक ऐसा प्लेटफॉर्म देने का काम किया है जहाँ पे वो कह सकता है कि मैंने अपने ड्रेसिंग रूम में अपने सीनियर के साथ खेला है, मैं लाइव स्ट्रीम में अपने आप को साबित किया है। और ये टूर्नामेंट नॉट ओनली आसनसोल, ऑल बंगाल, या फिर कह सकते हैं कि पूरी भारत देख रही है। तो ऐसे प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होती है। आसनसोल सब डिवीज़न का ये टूर्नामेंट पिछला साल काफ़ी बेहतर हुआ था, और उसी के बाद फिर से एक बार सतीश भाईजान ने, निखिल सिंह ने, सोनू दास ने, सैयद दानिश भाईजान ने, या फिर कहें कि पूरी इनकी टीम ने, सोनू खान, सोनू जिग्गी, बिल्टू बावरी, जितने भी लोग हैं, हर एक
ने अपने अपने प्लेटफॉर्म के हिसाब से, राहुल जैन सभी ने अपना 100% दिया है, और तभी आज ये टूर्नामेंट इतनी बड़ी प्लेटफॉर्म पे आ चुकी है। जैसे ख़त्म होगा फिर से इंतज़ार रहेगा कि कब शुरू होने वाला है BPL। एक ऐसा त्यौहार है ना, आप बनाते होंगे ईद, बनाते होंगे दुर्गा पूजा, मगर इस क्रिकेट के त्यौहार को हम सब एक साथ मिलकर एक मंच पे एंजॉय करते हैं। तो चलिए शुरुआत हो जाएगी। इस रन को चेज करने के लिए हमारे साथ कॉम बॉक्स में एक खूबसूरत आवाज़, इश्क में टूटा हुआ दिल, मिस्टर कामरान हबीब जुड़ चुके हैं। आसनसोल ब्रदरहुड प्रीमियर लीग सिर्फ क्रिकेट नहीं, यह है युवा प्रतिभाओं का उत्सव, ये खिलाड़ियों के सपनों को पंख देने का मंच, और ये आसनसोल की एकजुटता और भाईचारे की पहचान। टाइगर क्लब के 2 सलामी बल्लेबाज उतर चुके हैं मैदान पे। सोनू दास है स्ट्राइक पे, नन स्ट्राइक पे इमरान रॉबी, और गेंदबाज है चिन्मय मंडल। 82 रनों का टारगेट है। टाइगर क्लब की गेंदबाजी बहुत उम्दा रही, तहस नहस कर दिया सामने वाली टीम की बैटिंग ऑर्डर को। चिन्मय मंडल, पहला बॉल सोनू दास के लिए। प्रिंस ऑफ आसनसोल, पहली बॉल ओवर बाउंड्री के साथ शुरुआत है। वो पिछला सारा मुकाबला बेहतर गया नहीं है। कप्तान ने कहा था कि बड़े मंच का सरपंच है ये, बड़े मंच में कैसा खेला जाता है ये दिखाने के लिए फिर से एक बार तैयार है। तो प्रिंस ऑफ आसनसोल, लेफ्टी कहें राइटी कहें, जब मन हो जैसा मन हो ये खेल जाते हैं, और इनसे बेहतर फ्लिक शायद ही कोई खेल पाता है। ये आवाज, ये पड़ाके की आवाज बता रही है कि जीत की खुशबू अब टाइगर्स के खेमा में पहुंचने वाली है। सोनू दास, ABPL सीजन 2 बहुत आया इनको रास। बैटिंग से बहुत सारे रन्स बनाए इन्होंने। पहली बॉल पे जड़ा है छक्का। दूसरी बॉल इस बार फाइन लेग की जानिब खेलने का प्रयास था, सही तरीके से बैट पे बॉल आई नहीं। जब तक डीप स्क्वायर लेग पे गेंद फील्ड होती, स्ट्राइक रोटेट कर लेंगे सोनू दास। 82 रनों का टारगेट है, 3 ओवर्स का पावर प्ले। एक टोटल छोटा जरूर है, पर अब देखते हैं इस टोटल को कितना इंटरेस्टिंग बनाते हैं हनी 11 के गेंदबाज, क्योंकि बैटिंग लाइनअप बहुत तगड़ी है टाइगर क्लब की। 83 रनों को डिफेंड करना है तो फिर पावर प्ले में गुच्छों में विकेट चटकाना होगा। सात पे 0। रिक्वायर्ड रन रेट की बात की जाए तो काफी कम रन बॉल ही कह सकते हैं आप। सोनू दास, पहली बार इमरान सामना करेंगे। चिन्मय मंडल का एक्सपीरियंस इनके पास है गेंदबाजी में, और विकेट भी ये ले सकते हैं। बेहतर गेंदबाजी, बेहतर लाइन, और कुछ ऐसी गेंदबाजी करनी होगी इस टीम को। अगर आप देखेंगे हनी 11 को, तो इनके पास ज़्यादा सीनियर प्लेयर हैं। यंग टैलेंट तो कुछ है, मगर सीनियर के ऊपर काफ़ी विश्वास जताया गया है। कल इनकी टीम को सीनियर प्लेयर नहीं जिताया, इस समय भी जिम्मेदारी इनके कंधे पे है। देखो डॉट बॉल, वेल डन। वो बॉल तो बहुत अच्छी थी, और अच्छा छोड़ा भी इमरान रॉबी ने। शॉट के लिए गए नहीं, अगर शॉट के लिए जाते तो बल्ले का किनारा लग सकता था। पहली बॉल पे छक्का, फिर सिंगल, फिर 2 लगातार डॉट बॉल। ये चिन्मय मंडल, अपनी गेंदबाजी से ये गेंदबाज जादू करता है। 5वीं बॉल, रिवर्स मारने का प्रयास, एक बार फिर चकमा दिया बल्लेबाज को चिन्मय मंडल ने। इनकी जो बॉलिंग का जो एक्शन है, छोटा सा रन हवा देते हैं बॉल को, वेरिएशन इनके पास है, और बेबस करते हैं बल्लेबाज को। बेबस बल्लेबाज थे, मगर इस बार है नहीं। इस बार गई ओवर बाउंड्री, ओवर बाउंड्री। मगर मैं एक चीज कहूंगा कि पहले शॉट देख लेते हैं आप, जिस अंदाज में खेला गया था। सामने वाले सीनियर यानी आसनसोल के प्रिंस ने लगाया था उसी दिशा में, मगर वो राइट हैंडर थे, ये लेफ्ट हैंडर हैं। चलिए, जो कैच पकड़ा वो प्लीज आ जाएंगे। 100 रुपया का इनाम है।
एबीपीएल कमेटी की तरफ से 100 रुपये का इनाम। प्लीज़ आप हमारे कमेंट्री बॉक्स के सामने आ जाएंगे। बट अभी भी मैच खत्म हो नहीं हुआ है। अगर आप देखें जिस तरीके से कल का मुकाबला आपने देखा था, अंतिम ओवरों में जीत या हार का फैसला हुआ है, बट आप शुरू में हार ना माने, क्योंकि आखिरी ओवर में 6 में 6 भी नहीं बनते देखा आपने, और 6 में 36 भी बन जाते हैं। तो सभी खेल है कॉन्फिडेंस का। अगर आप अभी से आपके कंधे झुक जाएंगे, देख रहे हैं कि कंधे थोड़े से झुके हुए हैं, बट मैं कहूँगा ना कि मुकाबला ख़त्म हुआ नहीं है। 13 बने ज़रूर है, पावर प्ले है, बन सकते हैं। सोनू दास काफ़ी बड़े बल्लेबाज है, सबको मालूम है, मगर आपको आखिरी तक इस मुकाबले के लिए लड़ना है। बिल्कुल यही तो क्रिकेट है। क्रिकेट हारिए पर हिम्मत मत हारिए। पर ये हनी 11 की टीम है, ये आसानी के साथ वो हार नहीं मानती है, ये अंतिम सांस तक लड़ाई करना जानती है। राकेश शाह अपनी टीम की तरफ से दूसरा ओवर डालेंगे, विकेट टेकर गेंदबाज है। और पहली बॉल, व्हाट अ शॉट, ओवर कवर, 1 बॉल्स इनटू द फेंस। क्या शॉट है सोनू दास, देखते हैं शॉट को दोबारा। ये देखिए बैकफुट से सीधे बैट से कबड़ के ऊपर से दिलकश शॉट, लजीज शॉट, और ये क्रिकेट का सबसे खूबसूरत शॉट। ये दास साहब ये एक ही गियर में खेलते हैं, वो भी टॉप गियर में। शुरुआत की ओवर से ये बल्लेबाज पे प्रेशर बनाते। दूसरी बॉल, एक बार फिर उसी प्रकार का शॉट, कट कॉपी पेस्ट, परिणाम वही, 1 और 4। बिल्कुल परिणाम वही आ रहा है। विकेट के लिए लाया गया, मगर ऑफ स्टंप के बाहर डालेंगे तो ये इनके दिन में 10 बार मार सकते हैं, वो भी आसानी के साथ। बैट फ्लो देखते हैं इनका, मतलब लगता तो है कि काफी आसानी के साथ चलाते हैं, मगर गेंद बाउंड्री तक पहुंच जाती है, वो भी काफी आसानी के साथ। बाउंड्रीज आ चुकी है, आसानी के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा है। 21, 2 गेंदें तो बाउंड्री आ चुकी है। इस बार प्रयास किया था, सही निर्णय। अब बाउंड्री आ चुकी है, 8 बन चुके हैं, आपका रिक्वायर्ड रन रेट मात्र 7 का है, तो फिर आप जोखिम क्यों लेंगे। अब यहां से हनी 11 अगर विकेट 2 ओवर और ना ले तो फिर काफी पीछे चली जाएगी इनकी टीम। बिल्कुल, अब थोड़ा सा मामला संगीन कर दिया है दोनों बल्लेबाज ने हनी 11 की टीम के लिए, क्योंकि 9 बॉल में जड़ डाले हैं 22 रन। विकेट चाहिए, विकेट चटका के ही आप इस मैच में वापिस आ सकते हैं, वरना अभी तक से जो बैटिंग हुई है पलड़ा भारी है टाइगर क्लब की टीम का। और डेड बॉल का इशारा अंपायर के द्वारा। राकेश शाह को कुछ चमत्कार करना होगा, विकेट चटकाने होंगे। सेमीफाइनल का मुकाबला हर टीमों का ख्वाब है, फाइनल खेलने का एबीपीएल सीजन 2 का। चौथी बॉल, इस बार लेंथ को खींचा था, बैकफुट से स्लोक स्वीप खेलने का प्रयास इमरान रॉबी का। कनेक्शन ठीक ठाक वो हुई नहीं जब तक 30 गज दायरे के अंदर फील्डर गेंद को फील्ड करते, रन मिलेगा मात्र 1। तो जिस तरीके से अभी आप देखें टाइगर्स क्लब का जो खीमा है काफी शांत है, कप्तान साहब काफी मंत्रमुग्ध हो चुके हैं, क्योंकि शुरुआत काफी अच्छी हो चुकी है, 82 रन को चेज कर रहे हैं। कप्तानी पूरे टूर्नामेंट में उनकी बेहतर रही है, बैटिंग के साथ, बॉलिंग के साथ, डिसीजन मेकिंग के साथ, फील्डिंग के साथ, सभी चीजों में उनका काफी बेहतर रहा है। कुछ अलग करना होगा, कुछ अलग करने का प्रयास किया जा रहा, मगर एक तरफ से पिटाई हो ही जा रही है। सोनू दास फिर से एक बार तैयार है, 6 गेंदों पे 20 बना चुके हैं। इनका बल्ला बोला, और पिछले मुकाबले में ही कहा था निखिल सिंह ने कि अभी जरूरत है नहीं। बैरिकेड के बाहर बैठे हैं, कुछ सारे दर्शकों से रिक्वेस्ट है, प्लीज आप बैरिकेड के बाहर बैठें, बैरिकेड के बाहर चले जाएं प्लीज।
इस बार ऊंची गई है। अब सवाल यह है कि वहां पे फील्डर है नहीं। फील्डर क्यों नहीं है? क्योंकि ऑन साइड में खेलते हैं, बट फील्डर की जो पोजीशन आपने रखी है वो थोड़ा सा अलग लगा है, कॉन्फिडेंस काफी नीचे आया है। अगला मैच के लिए दोनों टीम से रिक्वेस्ट है, प्लीज आप तैयार हो जाए प्लेलिस्ट के साथ। विद इन 2 मिनट्स आपके साथ हम सब जुड़ेंगे टॉस के लिए। प्लीज दोनों टीम के कैप्टन आप जुड़ जाएं हमारे साथ प्लीज अगले मैच के लिए। जेएमडी टीम के कैप्टन और सिंह राइजिंग स्टार टीम के कैप्टन प्लीज ज्वाइन करेंगे। 2 के बाद 33 पे 0। सोनू दास 7 बॉल 26 रन। उनका जो स्ट्राइक रेट होता है वो अमूमन वो हवा से ही बातें करता है। चौके छक्के लगाना इनकी आदत नहीं, वो इनके खून में शामिल है। शुरुआत की ओवर से ये गेंदबाज पे हावी होते हैं। गेंदबाज को रिमांड पे ले लिया है सोनू दास ने। टीम के कप्तान आए हैं गेंदबाजी करने के लिए डाबला। 48 बॉल में चाहिए मात्र 49 रन। और पहली बॉल हवा में बॉल है, क्या कोई फील्डर बॉल तक पहुंचेगा? नहीं, प्रयास तो बहुत कमाल की थी। मिड ऑन से दौड़ करके वाइडिस लॉन्ग ऑन पे पहुंच गए थे, पर छिटकी हाथ से बॉल और मिल गया 4। इमरान रॉबी ये भी किसी से कम नहीं है, ये भी पिटाई करने में माहिर है। बॉल अच्छी थी वैसे डाबला की। वाइडिस लॉन्ग ऑन पे कोई फील्डर होता तो फिर विकेट मिल सकता था। दूसरी बॉल, ये होता है जब गेंदबाज को मार पड़ती है तो फिर गेंदबाज वाइड लाइन की तरफ भागते हैं और फिर ये गलती करते हैं। वाइड का इशारा। दूसरी बॉल, बेहतर डिलीवरी, लो फुल टॉस। संपर्क ठीक ठाक हुआ नहीं। जब तक मिड ऑफ पे गेंद फील्ड होती रन मिलेगा मात्र 1। अब स्ट्राइक पे हैं द डेंजर मैन, आसनसोल का किंग, सुपरस्टार, नाम है सोनू दास, जो कि 24 पे कर रहे हैं बल्लेबाजी। वो तीसरी बॉल, पीछे फील्डर, बन के रह जाएंगे दर्शक। ये सोनू दास का शॉट है, इसको पकड़ पाना नामुमकिन है दोस्त। चढ़ दिया है 4। ये देखिए शफल करके ऑफ स्टंप के बाहर फील्ड से खिलवाड़ कर रहे हैं सोनू दास। पावर प्ले का अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि डीप स्क्वायर लेग पे कोई फील्डर था नहीं, और फिर आसानी के साथ चौके छक्के की झड़ी लगा दिया इस बल्लेबाज ने। एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है और इसी बीच देख लीजिए, ये जल्दी मैच को खत्म करना चाहते हैं, मैच को खत्म करना चाहते हैं। काफी दर्शक यहाँ पे आए हैं, सभी का हार्दिक इस्तकबाल है, हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करती है। बट कुछ लोग हैं जो हमारे बैनर को फाड़ रहे हैं, जो बैरिकेड दिया गया उस बैनर को क्षति पहुंचा रहे थे। प्लीज आप ये सब ना करें क्योंकि आपके लिए ही एबीपीएल है, आप हैं तभी एबीपीएल है, तो इस चीज का खास ख्याल रखेंगे। हमारी कमेटी आप पे नजरें बनाई है। एक बार फिर से सोनू दास का बल्ला बोला है, सोनू दास इज ऑन फायर, अपने रंग में दिखे आज ये। सोनू दास तूफान का दूसरा नाम। और जब ये पिटाई करते हैं तो फिर गेंदबाज लाइन लेंथ भूल जाते हैं कि कहां डालू बॉल। ये अजब बल्लेबाज का एक और गजब शॉट। बॉल को मंगवाइए दर्शक दीर्घा से क्योंकि सोनू दास का फिलहाल तांडव है। देखते हैं शॉट को दोबारा। खराब बॉल थी
और खराब बॉल को ये छोड़ते कहाँ, ये तो छेड़ते। एक और छक्का जड़ दिया इस ओवर का। जो भी दर्शक बैरिकेटिंग के अंदर बैठे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप बैरिकेटिंग से बाहर चले जाएं। जो भी दर्शक SD18 का जो बोर्ड लगा हुआ है उसके अंदर जो भी बैठे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप उनसे पीछे चले जाएं। 3 के बाद 59 पे 0 टाइगर क्लब टाइगर की तरह खेलती हुई। यूं ही नहीं, इस टीम का नाम वो टाइगर क्लब रखा गया है। पहली बॉल ये इमरान रोमी ने जड़ा है 4। स्विच हिट में पॉइंट के ऊपर से 1 बॉल्स निकल गई 4 के लिए। नहीं, यहाँ पे तो टाइगर क्लब के बल्लेबाजों का बोलबाला है। जबरदस्त तरीके से पिटाई हो रही है, बिल्कुल धागा खोल दिया है दोनों बल्लेबाज ने। एक तरफा सा कर दिया, एक तरफा सा कर दिया। फिनिश जल्दी करना चाहते हैं, सीधे फाइनल तक पहुंचना चाहते हैं दोनों बल्लेबाज। ऐसा मानो आग उगल रहे इनके बल्ले से आज। गेंदबाज बदला मगर रवैया दोनों बल्लेबाज का यही रहा है, बेखौफ। 6 सिटिंग मशीन बन गए हैं बीच मैदान में दोनों। हर बॉल पे बाउंड्री का प्रयास किया गया है शुरुआती से लेके अब तक। निखिल सिंह लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट हर बार किया है, हर बार उन्होंने कहा, और कल बातचीत के दौरान कहा भी था मैंने कि सोनू दास अर्धशतक बड़े मंच पे जड़ सकते हैं। सोनू दास 11 बॉल 46 रन का रवैया बस एक ही रहता है गेंदबाज के प्रति। सोनू दास के जीवन का बस एक ही नियम है, मार मार के गेंद की हवा निकाल देना। चौथी बॉल लीजिए, एक बार फिर बोला है दर्शकों को कि पकड़ो कैच। इसी के साथ अर्धशतक पूरा कर लिया है। बड़े मंच का सरपंच से कहते हैं। 12 गेंदे 52 रन। जब जब जरूरत हुई तब तब सामने से आके लीड किया है। पिछला सीजन अर्धशतक नहीं शतक दिखा था, मगर इस समय सबसे बड़े मुकाबले में, सेमीफाइनल मुकाबले में अपनी टीम को एक इंपॉर्टेंट नॉक खेलकर दिखाया है। छक्के के साथ अपने अर्धशतक को पूरा किया है। अपने होम ग्राउंड में, होम क्राउड के सामने, अपने पिताश्री के सामने अपने बल्ला को बोला है, वेल डन प्रिंस ऑफ आसनसोल। सही है, क्या जरूरत है अब ओवर बाउंड्री की। बिल्कुल एक अलग निखार, एक अलग नजारा है इनकी बल्लेबाजी में। एडवेंचरस शॉट के साथ साथ प्योर क्रिकेटिंग शॉट भी इनके पास है। सोनू दास सेमीफाइनल के मुकाबले में खेला है एक शानदार नॉक। 13 बॉल 53 रन। स्ट्राइक पे है इमरान रॉबी। अंतिम बॉल रेम शॉट खेलने का प्रयास, जब तक फाइन लेग पे गेंद होती फील्ड रन मिलेगा नहीं। 4 के बाद 77 पे 0। दोनों बल्लेबाज बल्लेबाजी नहीं कर रहे हैं, गुंडागर्दी। बिल्कुल बॉलर के लाइन लेंथ को बर्बाद करके रख दिया है। 4 के बाद 77 पे 0। अब चाहिए 36 बॉल में मात्र 5 रन। 5 चाहिए। अब पहली 2 गेंदों पे होगा या पहली बॉल पे ही हो जाएगा, वो देखना पड़ेगा। सोनू दास शांत रहना पसंद करते हैं, स्पेशली उनकी जो ताकत है वो है फ्लिक। इनसे बेहतर फ्लिक और आसानी के साथ फ्लिक कोई बल्लेबाज नहीं मार सकता है।
36 बॉल 5 रन। टाइगर क्लब 4 के बाद 77। और पहली बॉल विनिंग शॉट निकला सोनू दास के बैट से। वो छक्का मार के अपनी टीम को फाइनल में पहुंचा दिया सोनू दास ने। वेल डन। बड़े मंच का सरपंच बना है कप्तान, पूरी टीम के साथ आ रहे हैं अभिवादन एंड स्वागत करने के लिए। आपने एक ऐसा मंच पे खेल खेला मानो इसी मंच की जरूरत थी। सीधे विनिंग शॉट के साथ फाइनल तक पहुंचाया है और ये खूबसूरत सा दृश्य आपको नजर आ रहा है। एक दूसरे के साथ अभिनंदन एवं स्वागत कर रहे हैं। हार जीत का फैसला या फासला जो भी होता है, भाईचारा हमेशा बरकरार रखना चाहिए। एक तरफ जीत की खुशियां होगी, दूसरी तरफ अगले मुकाबले के लिए तैयार हो जाएंगे। एक तरफ जीत के साथ ट्रॉफी के इंतजार फाइनल में उठाने की होगी, वहीं हारने वाली टीम सोचेगी कि अगले साल कैसे बीपीएल खेलना है। हार जीत हमेशा होते रहता है, मगर हर बार दूसरी चीज के लिए तैयार रहना यही सबसे बड़ी बात होती है। चलिए अब अगले मुकाबले के लिए हम सब तैयार हो जाएंगे, बीच मैदान में चलेंगे टॉस की तरफ। और टॉस के लिए जुड़ेंगे दो कप्तान, एक तरफ होंगे जेएमडी और दूसरी तरफ होंगे सिंह राइजिंग स्टार। दोनों कप्तान प्लीज पहुंचे। टाइगर क्लब एबीपीएल सीजन 2 की पहली टीम बनी जो फाइनल में पहुंची और इस मैच के हीरो बने सोनू दास। 83 रनों को टारगेट को ये देखें कमरन भाई, जिस तरीके से दृश्य, क्या बात है। ड्रोन व्यू एंड पूरी एंटायर टीम SG18 का ऐसे नजारा और कहां देखेंगे आप। सारी टीम जीतने के बाद वो बल्ले को सलाम कर रहे हैं, वो बैट को सलाम, साथ ही साथ बॉल को भी सलाम। जश्न का माहौल है, होना चाहिए, होगा क्यों नहीं, क्योंकि आपने एबीपीएल के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। उस बैट को सलाम है, उस बॉल को भी सलाम है। ये देखिए खुशियों का माहौल, फाइनल में प्रवेश कर चुकी है। टाइगर्स नाम है, टाइगर्स जैसा खेली भी है। कप्तान ने कप्तानी बेहतर की है, सोनू दास ने बेहतर पारी खेली है, गेंदबाज ने गेंदबाजी बेहतर की है। सभी चीजों को मिलाकर कहे तो कि टाइगर्स फाइनल पहुंच चुकी है। अब अगले मैच के लिए हम सब तैयार हो जाएंगे। दोनों कप्तान से रिक्वेस्ट है, प्लीज आप दोनों कप्तान जुड़ेंगे बीच मैदान में।